Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is electrochemistry. Firstly, we will discuss कि electrochemistry क्या होती हैगी. Electrochemistry ਜਿਹੜੀ है, that is the branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Chemical energy ਤੇ electrical energy 'ਚ क्या relation है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ study ਕਰਦੀ branch, that is called electrochemistry. और proper definition. So it is that branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical changes taking place in a redox reaction. Redox reaction ਅਸੀਂ 11th class 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ कि redox reactions क्या ਹੁੰਦੇ जी, in which oxidation and reduction take place simultaneously. So ਉਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਆਫ ਦ ਆਰ. ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ क्या प्रोड्यूस कर सकते, इलैक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलैक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, या हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी. क्लीयर है? वैसे इस चैप्टर के विच असीं इलैक्ट्रोलिसिस बारे भी पढ़ांगे. इलैक्ट्रोलिसिस च क्या हुंदा हैगा? इलैक्ट्रोलिसिस च इलैक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू bring about a chemical reaction. ठीक है. सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰਸ. ਕੰਡਕਟਰਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ? ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵਿਚ ਅਲਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੈਮ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ पास होने देंगे हैगे, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ठीक है. विच अलाउ इलैक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. अदरवाइज जेडे अलाउ नहीं करते उन्होंने असीं क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स. ठीक है. कंडक्टर्स जेडे हुंदे वो बेसिकली दो तरह के हुंदे. दीज आर ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड मैटैलिक कंडक्टर्स, other are called electrolytic conductors, or you can say electrolytes. ठीक है. ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ रोड ऑफ आयरन. आयरन रोड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ. ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਟਲਸ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਐਨੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ. कोई भी कैमिकल डीकंपोजिशन नहीं होएगी. मैटल्स, ग्रेफाइट, होर मिनरल्स वगैरह ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਥਰੂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ आयंस. दोनों विचों अगर एक भी होवे तो सबसटांस क्या है? इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. मैटल्स के विच जिहड़े मैटैलिक कंडक्टर्स है उन्हां विचों इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी है दैट इज फ्लो, करंट फ्लोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स. इहदे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो ये साढ़े मैटैलिक कंडक्टर्स हो जाते. ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਵਿਚ ਅੰਡਰਗੋ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ when
करंट इज़ पास थ्रू दैम, जिन्हों विचों करंट पास किया जाता तो दे अंडरगो कैमिकल डीकंपोजिशन। क्लीयर है? ठीक है। इन्हां विच जिहड़ी करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, फ्री आयंस। ठीक है। इफ यू हैव रिमेंबर साढ़े कोई क्वेश्चन होंदा है कि सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलैक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल। अगर असी इहदे विचों करंट पास करिए इट डिकंपोजिज Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव, नाउ दे बिकम फ्री। ये फ्री हो गए। ये जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है सॉरी फ्री आयंस है ये इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करन च हैल्प करते। बट इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने तो बाद सोडियम क्लोराइड तो डिकंपोज हो गया, सोडियम क्लोराइड ते सोडियम आयन ते क्लोराइड आयन दे विच। तो इस करके असीं कहंदे हैगे कि इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स तो जदों इलैक्ट्रिसिटी पास की जाती दे अंडरगो डीकंपोजिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटैलिक एंड इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। नाउ लैट्स फर्दर डिस्कस अबाउट इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, क्योंकि असीं इस चैप्टर दे विच बेसिकली इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या इलैक्ट्रोलाइट्स बारे ही स्टडी करनी हैगी। नाउ वी हैव डिस्कस कि इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होंदे हैगे कि जिन्हां चों इलैक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वो डीकंपोज हो जाते। तो इन्हां विच जिहड़े करंट फ्लो होंदा हैगा दैट इज़ फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। हुण इलैक्ट्रोलाइट्स या इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी दो तरह के होंदे, ये तुसीं 11th क्लास च भी कीता वा। वन इज़ स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स एंड द अदर कैटेगरी इज़ वीक इलैक्ट्रोलाइट्स। जिहड़े स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स होंदे वो क्या होंदे, वो इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होंदे जिहड़े सोल्यूशन दे विच कंप्लीटली डिसोसीएट हो जाते। ठीक है, विच डिसोसीएट कंप्लीटली इन सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट की कैटेगरी चाहता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो जो तुम 10 मोल सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन च या पानी च पाए है तो 10 के 10 डिसोसीएट होकर थानू क्या दोगे Na पॉजिटिव एंड Cl नैगेटिव। HCl है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट की कैटेगरी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर असी ये 10 मोल्स पाए तो 10 के 10 ही क्या करोगे डीकंपोज होंगे इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नैगेटिव। फिर वीक इलैक्ट्रोलाइट्स वो होंगे विच डज नॉट या डू नॉट डिसोसीएट कंप्लीटली इन द सोल्यूशन, जिहड़े सोल्यूशन दे विच कंप्लीटली डिसोसीएट नहीं होंदे हैगे उन्होंने असी क्या कहते हैं वीक इलैक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। हुण एसिटिक एसिड जिहड़ा वीक इलैक्ट्रोलाइट की कैटेगरी च है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर असी ये 10 मोल पानी च पाए तो हो सकता है 5 या 6 डीकंपोज हो जाए, 4 डीकंपोज ना हो। इट मीनस ये कंप्लीटली डीकंपोज नहीं हो रहा, तो ये नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे घट बनोगे। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट के केस नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनोगे। So now we have discussed about the categories of electrolytic conductors or electrolyte. Our next topic is factor affecting the electrolytic conduction. इलैक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन नू किहड़े-किहड़े फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि इलैक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। असी हुणे डिस्कस करके हटे कि स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंप्लीटली डिसोसीएट हो जाते या आयनाइज हो जाते। आयनाइज का मतलब भी आयंस दे विच टुटना ही हुंदा। ठीक है, जे कंप्लीटली आयनाइज होंगे तो उन्होंने नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे ज़्यादा होंगे। हुण इलैक्ट्रोलाइट्स की जिहड़ी कंडक्शन है वो किहदे करके है आयंस करके। अगर आयन ज़्यादा है तो कंडक्शन भी ज़्यादा होएगी, जबकि वीक इलैक्ट्रोलाइट्स जिहड़ी है उन्हां विच आयंस घट बनने तो उन्हां दी कंडक्शन जिहड़ी है वो क्या होएगी घट होएगी। दूसरा फैक्टर साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। देखो बच्चे करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, इत्थे चार्ज का केस जिहड़ा है आयंस है। ठीक है, फ्लो करना उन्होंने जिन्नी स्पीड नाल फ्लो करोगे उन्ना ही करंट जिहड़ा है ज़्यादा फ्लो करेगा। हुण जिन्ना साइज बड़ा होगा उन्ना उन्होंने मूव करन या फ्रीली मूव करन औखा होएगा, तो उस वेले कंडक्शन क्या होएगी घट होएगी। एंड देयर सॉल्वेशन क्या हुंदा, सॉल्वेशन हुंदा कि जदों असीं आयंस नूं पानी च पाते हैं तो पानी उहदे आसे पासे अट्रैक्ट हो जाता। सॉल्वेशन बारे मैं तुहानूं 11th क्लास भी काफ़ी दस्सिया वा। हाइड्रेशन ते सॉल्वेशन इक्को ही गल है इन केस जे सॉल्वेंट जिहड़ा है वो वाटर हो।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਨ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾएगी। क्यों? क्योंकि अगर साइज़ बड़ा हो गया तो हम फ्लो करन च मुश्किल आएगी, तो उस वेले उसकी कंडक्शन क्या होएगी, घट होएगी। इट मीनस जिन्ना साइज़ ज़्यादा बड़ा जिन्नी उसकी सॉल्वेशन ज़्यादा उसकी कंडक्शन उन्नी ही घट होएगी। नैक्सट इज़ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सोल्यूशन जिहड़ा है जिहड़ा सॉल्वेंट है अगर वो पोलर होएगा तो आयन्स उहदे विच ईजीली बनूंगे, तो जिन्ने आयन ज़्यादा बनूंगे उन्नी ही कंडक्शन क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। विस्कोसिटी की गल करिए तो विस्कोसिटी का एक तरह असीं मान सकते गाढ़ापन, सॉल्वेंट जिहड़ा है वो कितना फ्लो नूं रजिस्ट कर रहा। हुण अगर तुहाडा सॉल्वेंट जिहड़ा है उहदी विस्कोसिटी ज़्यादा होएगी तो आयन्स नूं उन्हां विचों फ्लो करन च रजिस्टेंस भी ज़्यादा होएगी, रुकावट ज़्यादा होएगी, तो उन्हां दी कंडक्शन जिहड़ी है वो क्या होएगी, घट होएगी। सो इट मीनस अगर साडी सोल्यूशन की सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होएगी तो कंडक्शन घट होएगी। ठीक है। नैक्सट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। वो हुण इक्को ही गल है, हायर द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लैसर इज़ द कंडक्शन, कंडक्शन घट होएगी। क्यों? क्योंकि अगर सोल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो आयन ज़्यादा बन रहे, वो एक दूजे नूं अपने वाल नूं क्या कर रहे, अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव तो नैगेटिव आयन्स दोनों ही सोल्यूशन दे विच होंगे, तो उस वक्त जिहड़े है वो आयन्स पूरी तरह फ्री नहीं हो पाते, फिर उन्हां दा फ्लो क्या होएगा, घट होएगा, तो इस करके कंडक्शन क्या हो जाएगी, फिर कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जिन्ना तुसीं उहनूं डाइल्यूट करोगे उन्ना ही आयन्स ने एक दूजे तो दूर जाना, जिन्ना वो एक दूजे तो दूर जाओगे उन्ना ही वो फ्री होंगे तो उन्हां दी कंडक्शन उन्नी ही ज़्यादा होएगी। नैक्सट इज़ टैंपरेचर। जिन्ना टैंपरेचर असी ज़्यादा करोगे उन्नी ही आयन ज़्यादा डिसोसीएट होंगे, उन्होंने वेलोसिटी उन्नी ज़्यादा मिलेगी तो उन्होंने कंडक्शन भी उन्नी ही ज़्यादा होएगी, बिकॉज यू नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। Now let's discuss the difference between metallic and electrolytic conductors. Metallic conductors ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ electricity ਦਾ flow ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ that take place without the decomposition of substance। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ metallic conductors ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ decomposition ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦਕਿ electrolytic conductors ਦੇ ਵਿੱਚ flow of electricity take place accompanied by the decomposition of the substance। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ composition ਜਿਹੜੀ ਹੈ decomposition ਹੋ ਜਾਂਦੀ substance ਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਇਨਸ, ਉਹ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स है उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जी टेंडेंसी है दैट इनक्रीजेज विद इंक्रीज इन टैंपरेचर। ठीक है। नैक्सट इज़ द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मैटल इज़ ऑल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स। वाइब्रेटिंग कर्नल्स जोड़े है हुण कर्नल्स क्या होंगे, मैटल्स के विच एक मैटैलिक बॉन्डिंग होंदी हैगी स्पैशल टाइप की, उहदे विच जिहड़े आउटर इलैक्ट्रॉन्स होंदे हैगे मैटल्स कोल ओह जिहड़े है ओह फ्रीली अटैच होंगे, मतलब लूजली अटैच होंगे है एटम के नाल, तो जदों वो ईजिली क्या हो सकते, लूज हो सकते, तो एटम्स जोड़े है जोड़े मैटल्स होंदियां उन्हां विच दो पार्ट होंगे, पॉजिटिव कर्नल्स ते फ्री इलैक्ट्रॉन्स। वो पॉजिटिव कर्नल्स जोड़े मैटल्स के एटम्स तो बनते अगर वो अपना आउटर इलैक्ट्रॉन जोड़ा है वो लूजली बाउंड रखे, उन्होंने स्ट्रोंगली बाउंड ना करे, तो जोड़ा रजिस्टेंस कॉज होएगा दैट इज़ कॉज्ड बाय मैटैलिक कंडक्टर्स। जबकि इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के विच रजिस्टेंस से जोड़े होर रीजन हो सकते कि आयन्स का सॉल्वेंट नाल इंट्रैक्शन किद्दां दी है, आयन्स की आपस में इंट्रैक्शन किद्दां दी है, या जिहड़ा सोल्यूशन है उहदी विस्कोसिटी किद्दां दी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैटैलिक एंड इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री जिहड़ी असीं यूज़ करदे। द फर्स्ट इज़ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ तुसीं 10th क्लास च भी पढ़िया हुआ है, हो सकता है तुसीं 12th क्लास च फिजिक्स च भी पढ़ लिया होवे। What does it state? It states that the temperature, the current flowing through a conductor
is directly proportional to the voltage applied across the conductor. ठीक है, जिहड़ा करंट है किसी कंडक्टर 'ਚ ਜਿਹੜਾ करंट पास हो रहा ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना करंट किन्ना वोल्टेज जिहड़ी है वो क्या कर रहे अप्लाई कर रहे. सो इट मीन्स I is directly proportional to V. I इत्थे क्या है करंट, V is the voltage applied across the conductor. ठीक है, तो इथों अगर असी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए तो 1/R. सो इथों इक्वेशन क्या बन जाएगी V is equal to IR. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर ओहम्स लॉ. ठीक है, R इत्थे क्या है, R इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. इनू असी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होंदा हैगा, इट इज़ द ऑब्सटैकल टू द फ्लो ऑफ करंट. मतलब कि करंट नूं रोकण वाली जिहड़ी प्रॉपर्टी है किसी सबसटांस की उन्होंने असी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं. अगे हुण असी इहदे बारे डिस्कस करांगे. इट इज़ द ऑब्सटैकल. ऑब्सटैकल क्या होंदा हैगा, रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, करंट दे फ्लो नूं जिहड़ी चीज़ रुकावट पैदा कर रही उन्होंने असी क्या कहोंगे रेजिस्टेंस. हुण अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR. तो इथों I किहदे इक्वल हो गया V/I. तो इहदी यूनिट्स क्या होंदियां हैगियां ओहम. ओहम इज़ द यूनिट्स फॉर रेजिस्टेंस. नैक्सट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का मतलब है कि किन्नी आसानी नाल करंट जिहड़ा है वो कंडक्टर दे विचों फ्लो कर रहा. इट मीन्स इट इज़ द ईज विद विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर दे विचों करंट किन्नी आसानी नाल फ्लो कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस. एंड कंडक्टेंस इज़ डिनोटेड बाय G. इनू असी G दे नाल डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है कितना रोक रहा, इसका मतलब क्या है किन्नी आसानी ना फ्लो कर रहा. तो इट मीनस एक दूजे के उल्टे हो गए. सो इट मीनस G इज़ इक्वल टू 1/R. यूनिट्स की गल करिए तो G कि इक्वल है 1/R दे. R दी यूनिट्स क्या थी ओहम. तो यदि क्या बन जानी पर ओहम. और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोहो. पर अजकल इनू बोलते हैं साइमन्स. ठीक है, कॉमनली दी यूनिट्स चल दी है साइमन्स. सो कंडक्टेंस क्या होगी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या होंगी, इट इज़ अ रेजिस्टेंस. ठीक है, इनू स्पैसीफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं पर अजकल इनू रेजिस्टिविटी ही कहते हैं. ठीक है, हुण रेजिस्टिविटी क्या होंदी हैगी, रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दी रेजिस्टेंस होंदी हैगी. इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 centimeter square and length of 1 centimeter. जे SI यूनिट करना हैगा तो इत्थे 1 मीटर स्क्वायर तो यह 1 मीटर. हुण रजिस्टिविटी दे विच क्या कर रहे, रजिस्टिविटी दे विच जिहड़ा एरिया ते लेंथ है वो क्या कर रहे फिक्स कर रहे. हुण मान लो जिद्दां पूरा पेज है, इस पूरे पेज की जिहड़ी ऑब्सटैकल है टू द फ्लो ऑफ करंट दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. बट अगर असी इस पेज दे विचों इन्ना पोर्शन लईए तो मान लेंदे है कि इहदी जिहड़ी एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इहदी जिहड़ी मोटाई है या लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है. तो इन्ने पर्टिकुलर एरिया की जिहड़ी रेजिस्टेंस होएगी उन्होंने असी क्या कहोंगे रेजिस्टिविटी कहोंगे. पर जो पूरे पेज की रेजिस्टेंस की गल करिए दैट इज़ सिंपली कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी के केस दे विच असी कंडक्टर्स की जिहड़ी डायमेंशनस है
ਉਹਨੂੰ क्या कर लेंगे फिक्स कर लेंगे। तो इट मीनस अगर असी लेंथ वगैरह चेंज कर रहे तो रजिस्टिविटी नू कोई ज़्यादा जिहड़ा चेंज है वो नहीं हो रहा। हुण जिहड़ी रजिस्टेंस हुंदी वी नो दैट इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये तुसीं 10th क्लास च भी पढ़िया वा, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इन्हां दोनों टर्म्स नू इकट्ठा करा तो क्या बन जाएगा एल अपॉन ए। अगर असीं इत्थे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए तो इत्थे आ जाएगा रो एंड दिस इज़ कॉल्ड रजिस्टिविटी। ठीक है, तो इत्थों रो क्या आ जाएगा आर इंटू एल अपॉन ए। हुण असीं इत्थों भी डेफिनेशन बना सकते, अगर असीं एल पुट कर दिए 1 सेंटीमीटर तो एरिया पुट कर दिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आर किहदे इक्वल आ जाएगा रो दे। सो इट मीनस रजिस्टिविटी इज़ द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर। इस तरह असी जिहड़ी है रजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख सकते। यूनिट्स की गल करिए तो देखो रो की इक्वल है आर इंटू एल अपॉन ए। रजिस्टेंस की यूनिट्स ओहम, लेंथ दी मीटर, अगर असी एस आई की गल करिए सी जी एस की गल करिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर सकते, अपॉन एरिया 1 मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगी ओहम पर मीटर। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ resistivity। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज resistivity। now next property is conductivity and it is denoted by kappa। this is not k, this is actually kappa। ठीक है, now it is the reciprocal of resistivity। यह resistivity दी क्या होगी reciprocal होगी। it means ਅਸੀਂ कह सकते it is the conductance of a conductor having 1 meter square or 1 centimeter square area of cross section and length of 1 meter or 1 centimeter। ठीक है, सो कापा इज 1 अपॉन रो, रेसिप्रोकल हो गए। यूनिट्स की गल करिए तो रजिस्टिविटी की क्या यूनिट्स थी ओहम पर मीटर, ये क्या बन जाएगा पर ओहम मीटर। पर ओहम नू असी क्या लिख सकते साइमन मीटर। ठीक है, सो क्या यूनिट्स बन गया दी साइमन मीटर और साइमन सेंटीमीटर। ये सी जी एस होगी तो उपर वाली एस आई दे होगी। ठीक है, सो दिस इज कंडक्टिविटी। नैक्सट प्रॉपर्टी इज मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा के नाल डिनोट करते सबस्क्रिप्ट एम। मोलर कंडक्टिविटी क्या होंगी इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन या conductance of all the ions produced when 1 mole of an electrolyte is dissolved in a solution। ठीक है, so it is the conducting power of all ions produced when 1 mole of electrolyte is dissolved in सोल्यूशन। किसी भी इलैक्ट्रोलाइट का जो 1 मोल सोल्यूशन डिजोल्व किया जाता तो आयंस प्रोड्यूस होने, उन्होंने आयंस की जी कंडक्टेंस होनी हैगी दैट इज़ कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड इट्स फॉर्मूला इज लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी और वी कैन राइट एम। हेयर एम इज मोलैरिटी, कापा क्या है कापा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, लैम्डा एम क्या हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी कि जदों 1 मोल किसी भी इलैक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन च डिजोल्व किया जाता तो उहदे तो जिहड़े आयंस प्रोड्यूस होंदे उन्हां दी कंडक्टेंस नूं या कंडक्टिंग पावर नूं असीं क्या कहंदे हैगे मोलर कंडक्टिविटी। नाउ द नैक्सट प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये क्या होंदी हैगी इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड when 1 gram equivalent of an electrolyte is dissolved in the solution। is dissolved in solution। now it is related to normality and its formula is कापा इंटू 1000 अपॉन एन। एन इत्थे क्या है एन इत्थे है
नॉर्मैलिटी ऑफ द सोल्यूशन जिहदे बारे तुसी 11th क्लास च स्टडी कीता है. So these are the important terms that we have used, that we will use in electrochemistry. Let's revise it again. So first one was resistance, that is R is equal to V upon I. Then we have discussed about resistivity, that is R into A upon L. Then we have discussed about conductance, G, that is 1 upon R. Conductivity, kappa, that is 1 upon rho. Then is molar conductivity, lambda m, that is kappa into 1000 upon m. The other one was equivalent conductivity, that is lambda equivalent kappa into 1000 upon n. So these are the formulas that we have discussed today. Tomorrow we will discuss how to measure the conductance or conductivity and numerical related to these topics. Thank you.